Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with our new lecture, that is lecture number 6 for web technologies in programming. In this lecture, we will study introduction to HTML, that is hypertext markup language. Before proceeding to the content of today's lecture, let's see the summary of previous lecture. In the previous lecture, we have discussed software system architecture. We have discussed what is architecture. We have discussed the major features of architecture, that is components, connectors, collaborations, and then we have discussed different terminologies regarding to architecture. After that, we have discussed that web-based application architecture is more complex and requires additional functionalities in architecture as compared to desktop applications. For that, we discussed why additional functionalities, because of additional functions such as performance, load, reliability, scalability. And then we have discussed that layer architecture. In layer architecture, we have discussed 3 different categories. We have discussed 2-layered architecture. In 2-layered architecture, we have discussed that it is suitable for 10 to 100 users. It is cheap. It is for static web pages, and it is for small level organization and business community. Then we have discussed 3-layered architecture, that is application layer, business logic layer, and data layer. And 3-layer architecture is suitable for 100 to 1000 users. It is more complex as compared to 2-layer architecture, and it is suitable for large level organizations within a region, within same geographical boundaries. Moving ahead, we have discussed 3-layered enhanced form, that is N-layered architecture. N-layered architecture is suitable for 1000 users or more. It is the most costly architecture, and it is suitable when the organization is spread across different countries, different geographical boundaries. And in N-layer architecture, different data layers are separate. For example, for data server, for e-commerce server, for HR server, and multiple clients through multiple applications can access different data layers, and web servers serve accordingly. What we will study in today's lecture. In today's lecture, we are going to study introduction to HTML. We will discuss about the basic structure of an HTML page, and then we will see different text formatting in HTML. And this text formatting is discussed in the lecture with respect to different tags that are said to be HTML tags. And in the end of the lecture, we will overview about lists in HTMLs. Introduction to HTML. HTML is abbreviation of Hypertext Markup Language. It is a language of web pages on the World Wide Web. On the internet,
there are web pages, and different web pages consist of websites, and there are dynamic websites as well, and there are web-based applications as well. So for all those to communicate with the users on their different operating systems and browsers, and for all those applications to communicate with each other, the standard language is Hypertext Markup Language. What does hypertext stand for? Hypertext allows for non-linear linking to other document. Non-linear linking means it's not a sequential linking. It's just a linking with multiple documents, multiple web pages. While the word markup language is marked up or tagged to tell the browser how to display the content or information. So markups is basically meant for mentioning the display of information presentation on the web browser on the client machine. It is said to be a markup language. Why? Because it contains set of markup tags, multiple set of markup tags, different tags. HTML is a text of formatting language. Text of formatting language means कि आप इसके अंदर different तरह की formatting apply कर सकते हैं, font size की, font style की, spacing की, paragraphing की, headings की, boldness की, underline करने की. So that's why it is said as text formatting language as well. And HTML is standardized and developed under an authority of the world, and that is World Wide Web Consortium, usually abbreviated as W3C. So under the rules and policies of W3C, HTML standards are developed, and the link is mentioned below, that is w3c.org, and the head of W3C is Tim Lee. HTML also defines the structure of web pages and determines how data is displayed online on the internet. So HTML वेब पेज में होम पेज कौन सा होगा, वो किस पेज को लिंक करेगा, सब पेजेस कौन कौन से होंगे, किस पेज के अंदर क्या स्ट्रक्चर होगा और क्या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है, ये कंप्लीट जो है HTML डिफाइन करती है. एंड इसके साथ साथ इट हैज आल्सो सेट ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एडिड इन द टेक्स्ट to add formatting and linking information. So हर वेब पेज के अंदर जो टेक्स्ट मौजूद होगा उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए, फॉर एग्जांपल उसको बोल्ड करने के लिए, उसको अंडरलाइन करने के लिए, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए, उसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, और उस टेक्स्ट को और उस इंफॉर्मेशन को लिंक करने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस HTML में मौजूद हैं. HTML को डायरेक्टली एक ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है. किसी भी वेब ब्राउज़र को जो लैंग्वेज समझ आती है उसमें HTML उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल है. So it is directly understandable, it is directly interacted by the web browsers. And web browsers mean, for example, Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, right? So HTML is described by using different sort of HTML tags, and each HTML tag in HTML language has this defined set of meaning.
So all HTML tags describe different document content, different meaning. HTML was created in 1991 by Tim Berners-Lee at CERN in Switzerland. So in 1991, there's a person, Tim Berners-Lee, who is heading W3C as well. In Switzerland, at CERN conference, created HTML formally. It was designed to allow scientists to display and share their research. In 1995, the second version of HTML was launched, that is HTML2. और जब ये वर्जन लॉन्च किया गया तो बहुत से वेब ब्राउज़र्स ने HTML को इंटीग्रेट किया, उसने बिट्स को अपने वेब ब्राउज़र्स के अंदर. And Don Canoli and colleagues collected all the HTML tags that were widely used and collated them into a draft document. तो different web browsers ने जब different HTML tags के bits को अपने अपने web browsers के साथ collaborate करवाया, so उस टाइम पे डॉन कनोली और उसके फ्रेंड्स ने उन सारे टैग्स को अक्रॉस द वर्ल्ड तमाम वेब ब्राउज़र से कलेक्ट किया और एक इनिशियल ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट किया जिसके अंदर तमाम टैग्स को मेंशन किया कि किस टैग को किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है. In 1997, the next version of HTML is launched, that is HTML 3.2. It was the first version developed and also standardized explicitly, exclusively by W3C. So 1997 में ये जो हमारे पास W3C कॉन्स्टेडियम का इंस्टीट्यूट था, इस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपरली ऑथेंटिकेट करके एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ HTML को लॉन्च किया, दैट इज HTML 3.2. और HTML 3.2 के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड थी? जावा एप्लेट्स, टेक्सचुअल डाटा इसके अंदर था, इमेजेस के अराउंड फ्लो करवा सकते थे, आप एक इमेज को लिंक के ऊपर क्लिक करवा सकते थे या इमेज से आप किसी और इमेज पे लिंकिंग करवा सकते थे, सबस्क्रिप्ट्स थे इसके अंदर, सुपरस्क्रिप्ट्स ऑफ टेक्स्टिंग इसके अंदर मौजूद थी. सो ये 3.2 की वर्जन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी. In 1999, HTML 4.1 was launched, and HTML 4.1 is an extended version and it has the mechanism of style sheets थी इसके अंदर, डिफरेंट तरह की डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट इसके अंदर थे और इसके साथ साथ आपके पास स्क्रिप्टिंग के फीचर इसके अंदर थे, क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग आप इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट जो है जो हम देखेंगे वो इसके अंदर इंटीग्रेटेड था 4.1 में. एंड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML इज HTML5. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस HTML tags. Tags are instruction that are directly embedded into the text of the document. HTML के डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है उसके अंदर टैग्स को इंटीग्रेट किया गया और इज अ सिग्नल टू वेब ब्राउजर what to do before just trying displaying on the screen. So tags is basically instruction to the web browser before the representation of any information on the web browser to the client. Always remember that tags open with angle brackets and end with close angle brackets. So if you see, there is an open angle bracket, this one, and end with close angle bracket, this one. So for example, that is written in bold. If you do consider, the word HTML is written before this is open angle bracket, that is the start of any tag, and after the word alphabet L there is
close angle bracket, that is the end of any tag. So HTML tags normally comes in pairs, just like a P with start angle bracket and end angle bracket, and again a start angle bracket, a forward slash, P and then end angle bracket. So ये pairs में HTML के tags होते हैं. The first one without slash is the starting tag, and the second one with slash is the ending tag. Normally, usually, sometimes कुछ tag ऐसे भी हैं जो अकेले होते हैं, मीन्स उनका कोई एंडिंग टैग नहीं है, वो सिंगल टैग ही होता है जो किसी पर्पस के लिए यूज होगा. लेकिन नॉर्मली HTML टैग्स जो हैं वो पेयर में आ रहे होते हैं, और आपके पास जो विदाउट स्लैश होगा वो स्टार्टिंग टैग होगा, और जो विद फॉरवर्ड स्लैश होगा वो आपका एंडिंग टैग होगा. सो द विदाउट स्लैश जो है इसको हम फर्स्ट टैग कहते हैं पेयर का, और स्टार्ट टैग भी कहते हैं इसको, और जो विद स्लैश होता है इसको हम सेकंड टैग कहते हैं, और एंड टैग भी कह रहे होते हैं. द एंड टैग इज रिटन लाइक द स्टार्ट टैग बट विद अ स्लैश बिफोर द टैग नेम. उसमें सिर्फ एडिशन स्लैश का है. सो ये पेयर टैग्स है हमारे पास HTML का. ये स्टार्ट टैग है विदाउट स्लैश, और ये एंड टैग है विद स्लैश. देयर एग्जिस्ट ऑल्सो सिंगुलर टैग्स जो पेयर नहीं होते, जो सिंगल टैग होता है, लाइक BR. दिस इज अ सिंगल टैग. ये टैग लाइन ब्रेक के लिए होता है, अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में. ये सिंगुलर टैग है BR का जो टैग है हमारे पास. HTML इज नॉट केस सेंसिटिव. आप HTML के अंदर एक टैग को, लाइक BR का टैग था, आप कैपिटल में लिखें या आप स्मॉल में लिखें, या आप कैपिटल और स्मॉल को मिक्स करके लिखें, तो HTML उसको अकॉर्डिंगली कंपाइलर हैंडल करेगा. Blank and new lines are ignored in HTML. So you can, if you are giving spaces and if you are giving blank options, that is ignored by the HTML language. If you want to add some comments for your reference, for your coding style practice, and if you want to add comment, the strategy is start angle bracket, sign of explanation, then two hyphens, then write the comments whatever you want to write, then again hyphens, and then end angle bracket. So in this way whatever is written over here will be ignored by the compiler. And always save HTML files with .html extension. Whenever a file has .html extension, it is considered to be an HTML file and it can be executed on a web browser. So what is the structure of an HTML page? If you do consider, this is the starting of HTML and this is the ending of an HTML, right? So there is a head over here. So a head tag on the top and then ending tag, and in between head tag there is a title tag. Title tag, and then there's mentioned whatever the page title you want to mention. Suppose you want to mention home page, and the ending tag, and then the body tag, and inside the body tag there is a different tags mentioned, heading tag, paragraph tag, and so many else. One important thing over here is that the body tag background is given white. Why? वो तमाम चीजें जो आप बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे यूजर को वो चीजें डिस्प्ले होंगी. ये इंफॉर्मेशन यूजर को डिस्प्ले होती है. Whatever you write in the head tag will not be displayed to the user. Please keep in mind, right? So body tag के अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है. So if you want to have some information, so to present the user, you need to write that information inside the body tag. If you by mistakenly written in the head tag, it will not be displayed on the user browser. The entire web page is in
closed with HTML and ending tag of /HTML. So किसी भी पेज को कैसे पता चलेगा कि HTML का था? हेड और बॉडी जो है वो HTML टैग्स के अंदर आते हैं. So हमेशा स्टार्टिंग टैग HTML होगा एंड एंडिंग HTML होगा. इसके अंदर हेड एंड बॉडी आएंगी. सो विद इन दीज टू टैग्स आपके हेड का सेक्शन सेपरेट आएगा जो डिस्प्ले नहीं होगा यूजर को, और आपका बॉडी का टैग आएगा जो डिस्प्ले होगा यूजर को. सो if you do consider our here, the starting is the head tag, then a title tag is written and then head is written. Now what is the title tag? आप इस टाइटल टैग के अंदर जो भी लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने होम पेज लिखा, आपने इंडेक्स पेज लिखा, आपने लिखा माय वेब एप्लीकेशन, सो वो आपको वेब पेज में वेब ब्राउजर के तौर पे जो टैब खुलेगा, जो विंडो खुलेगी, उसकी टाइटल के तौर पे नजर आएगी. बॉडी टैग. बॉडी टैग आपकी मेन बॉडी है जो HTML आपको डिस्प्ले करेगी यूजर ब्राउजर्स के ऊपर, वो बॉडी टैग में होना चाहिए. और बॉडी टैग में आपकी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन होती है, मोस्टली स्टार्ट ऑफ द बॉडी टैग एंड एंड ऑफ द बॉडी टैग. सो बॉडी टैग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द HTML टैग. ये HTML टैग के इनसाइड होगा और बॉडी टैग जो है ये डिस्प्ले करेगा इंफॉर्मेशन वेब ब्राउजर्स के ऊपर. So let's start with an example of an HTML page. This is our first HTML page, right? You just open a notepad on your computer. You have to write first of all an HTML tag. This is the starting tag, and always write the ending tag with itself, that is /HTML tag. Between HTML starting and ending tag you have mentioned head tag. So in head tag you have mentioned the title tag, and the title is given my first HTML page by myself. You can change it accordingly. Then after the head tag there is a body tag, start tag and ending tag, and in body tag there is an information without any tag, that is hello world is written. So on the web page, when we will launch it on the web browser, on the web page only hello world is written. So the information that is written my first HTML page will be on the title of the web page. So we will save this file, and while saving we have to consider we save it as .html page, and then we will open it with web browser. So the output will be, here you see a browser screenshot is given, my first HTML page. This is the head section and the title is displaying over here, and the hello world, this is the body section data that is displayed to the user over here. Let's move to the next topic, that is document type. This is another important thing to be considered for the structure of an HTML pipe. The document type declares has to display web page correctly depend on the document type. आप कभी भी जब HTML की कोडिंग कर रहे होंगे तो आपने टॉप पे डॉक्यूमेंट टाइप को मेंशन करना होगा. जो भी डॉक्यूमेंट की टाइप होगी उसको देखते हुए वो इंफॉर्मेशन नीचे से HTML से बॉडी से रिप्रेजेंट करेगा. टू डिस्प्ले आर डॉक्यूमेंट करेक्टली द ब्राउजर शुड नो करेक्टली कि आपकी डॉक्यूमेंट टाइप कौन सी है और उसका वर्जन कौन सा है. फॉर एग्जाम्पल आपका डॉक्यूमेंट HTML 3.2 का है, HTML 4.1 का है, HTML 5 का है, किस डॉक्यूमेंट टाइप का है. सो उसके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा, बिकॉज जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं तो उनमें एनहांसमेंट आ रही है. सो अगर आपने डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो 4.1 कर दिए और आपने वो टैग दे दिया जो HTML 5 का है, HTML 4 में सपोर्टेड नहीं है, तो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं होगी. Similarly, if you want to display an information of HTML5, तो आपको टॉप पे डॉक्यूमेंट टाइप में मेंशन करना पड़ेगा, so that browser can come to know कि कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप है, उसका कौन सा वर्जन है, और उसके अकॉर्डिंगली वो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा दे. The document declaration is again not case sensitive. आप इसको स्मॉल या कैपिटल में लिखें, इसका इफेक्ट नहीं होगा. Let's see the common document declarations. लेटेस्ट जो डॉक्यूमेंट टाइप आजकल चल रही है that is HTML5, और इसको हम यूं मेंशन करते हैं स्टार्ट टैग, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, doc type
स्पेस HTML एंड एंड टैग। जब आप ये डॉक्यूमेंट की टाइप के ऊपर लिखेंगे, डॉक्यूमेंट की पहली फर्स्ट टैग ये लिखेंगे आप, तो इससे HTML की इंफॉर्मेशन 5 की इंफॉर्मेशन वेब ब्राउजर को मालूम हो जाएगी और ब्राउजर उसके अगेंस्ट डिस्प्ले कर रहा होगा इंफॉर्मेशन। इफ यू राइट HTML 4.01 सो डॉक्यूमेंट टाइप इज, अब आप उसकी टाइप लिख रहे हैं तो आपको इस तरह मेंशन करना पड़ेगा HTML पब्लिक और ये सारा एम्बेडेड पाथ एंड HTML का वर्जन W3 की साइट से आपने रेफरेंस देना होगा। सो इन दिस वे वेब ब्राउजर को पता चलेगा कि ये HTML 4.01 का डॉक्यूमेंट है और मुझे उसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है। एंड अनदर इज XML, XHTML, XHTML 1.0। XHTML इज एन एक्सटेंशन इन HTML, हम इसको भी डिटेल में देखेंगे। इसकी डॉक्यू टाइप मेंशन करने के लिए हम इसके रेलिवेंट W3 स्कूल का रेफरेंस देंगे और उसके रेलिवेंट मेंशन करेंगे W3 का एब्सोल्यूट पाथ और ये हमें इन्वर्टेड कॉमास में मेंशन करने हैं। सो इसके ऊपर उसको मालूम हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट टाइप कौन सी है और उसके अगेंस्ट HTML में XML में डिस्प्ले होगा। द बॉडी टैग एट्रीब्यूट्स। अब बॉडी टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं, हम 3 एट्रीब्यूट्स का भी डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 इज BG कलर, इट चेंजेस द बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर का एट्रीब्यूट है। नंबर 2 इज बैकग्राउंड, अगर आप बैकग्राउंड के तौर पे कोई कलर की बजाय इमेज प्लेस करना चाह रहे हैं सो यू कैन डू दैट यूजिंग द बैकग्राउंड टैग। द थर्ड वन इज द टेक्स्ट, सो आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं सो आप टेक्स्ट के एट्रीब्यूट्स के जरिए चेंज कर सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, हमने बॉडी टैग लिखा, BG कलर का टैग लिखा और हमने BG कलर के अगेंस्ट ये जो 1 2 3 3 4 5 ये हैश कोड लिखा हुआ है कलर का, हर कलर का रेड ग्रीन ब्लू येलो हर कलर का एक हैश कोड डिफाइन है स्टैंडर्ड और वो हैश कोड यहाँ पे मेंशन है। एंड देन टेक्स्ट इज रेड, सो रेड कलर का ये टेक्स्ट होगा आपके पास और जबकि बैकग्राउंड कलर का ये वाला कलर होगा, लेट्स सपोज इट्स ऑफ येलो कलर, तो ये येलो कलर का हैश कोड मेंशन है। देन बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू, और अगर आप बैकग्राउंड पे इमेज लगाना चाह रहे हैं तो इमेज और इमेज की टाइप भी आपको बतानी पड़ेगी। अगर इमेज की टाइप जो है वो आप मेंशन नहीं करेंगे और वहां पे मल्टीपल इमेज टाइप्स पड़ी हुई हैं तो यू मे फेस द एरर। तो आपको मेंशन करेगा पढ़ना है इमेज का नाम और इमेज की फाइल टाइप कौन सी है और टेक्स्ट का कलर अगेन आप रेड करना चाह रहे हैं। सो इफ यू डू कंसीडर अवर हेयर, हमारे पास यहाँ पे एक बैकग्राउंड के ऊपर एक बैकग्राउंड कलर आ गया, पिंक कलर का कोड था 1 1 2 2 3 3 और ये कलर जो है हमारे पास वेलकम टू HTML ये रेड कलर में आ गया। जबकि अगर हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग में देखेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग जो है अलाइन नहीं है। अब ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की बात हो रही है कि आपने एक HTML में टेक्स्ट को लिख दिया टेक्स्ट में, तो ये टेक्स्ट अगर आप फॉर्मेट नहीं करेंगे तो ऐसे ही प्लेस होकर डिस्प्ले हो जाएगा। सो इट इज नेसेसरी कि आप इसको फॉर्मेट करें। ये जस्टिफिकेशन नहीं है, स्पेसिंग नहीं है, अगर फॉन्ट साइज एंड स्टाइल्स डिफरेंट हैं सो यू नीड टू लाइन दैट। सो ये आपके पास टेक्स्ट जो है वो एक गो में प्रेजेंट हो रहा है। दी बादशाही मॉक्स से लेके एंड तक जो कंप्लीट टेक्स्ट था, इफ यू गो टू द प्रीवियस स्लाइड इसका अकॉर्डिंगली वैसे ही आ रहा है। सो अगर हम टेक्स्ट में पैराग्राफिंग करना चाह रहे हैं, हम टेक्स्ट के अंदर जो है फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, सो वी नीड टू यूज P टैग। P टैग इज बेसिकली यूज फॉर पैराग्राफिंग। ये P स्टार्टिंग टैग है और ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ एंडिंग टैग है। एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पैराग्राफ क्या क्या हो सकते हैं? अब पैराग्राफ टैग के मजीद एट्रीब्यूट्स हैं और उसके एट्रीब्यूट्स क्या कि हम पैराग्राफ को लेफ्ट रखना चाह रहे हैं, राइट करना चाह रहे हैं, पैराग्राफ को सेंटर में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं या पैराग्राफ को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। सो हम लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई करना चाह रहे हैं पैराग्राफ को। इसमें BR है, इट गिव्स वन मोर लाइन ब्रेक। BR टैग जो एक लाइन ब्रेक यूज करवा रहा होता है बीच में। आफ्टर दिस टैग स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। सो अगर आप
एक पैराग्राफ यूज कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखें, लेकिन बीच में एक लाइन आए, तो आप लाइन ब्रेक यूज करेंगे एंड द टैग इज BR, और ये सिंगुलर टैग है, इसका एंडिंग टैग नहीं है। टेक्स्ट स्टाइल, अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट को आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिखना चाह रहे हैं, टेक्स्ट को आप इटैलिक में लिखना चाह रहे हैं, टेक्स्ट को आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, या टेक्स्ट को आप हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो ये टैग्स यूज होंगे। सो बोल्ड का टैग जो है वो B प्रेजेंट करेगा, इटैलिक करना चाह रहे हैं तो I प्रेजेंट होगा, अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो U प्रेजेंट होगा, और अगर आप HR लिखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन उसके नीचे पूरी ड्रॉ कर देगा, कंप्लीट की कंप्लीट। सो अब ये हमने एक टेक्स्ट के एट्रीब्यूट देखे कि अलाइनमेंट में लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, टेक्स्ट का साइज है 2, उसकी जो विड्थ है एक्सपेंड कर रहे हैं वो 100% है, और उसका कोई कलर हम मेंशन कर रहे हैं। सो ये टेक्स्ट पे डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट्स हम अप्लाई कर रहे हैं। These are headings in HTML tags. There are 6 different headings in HTML starting from H1 till H6, and the major difference is only size. अगर आप किसी भी चीज को H1 के अंदर लिखेंगे स्टार्टिंग इन एनी टैग में, तो वो लार्ज साइज में आएगी, 6 साइज के साथ आएगी। अगर H2 के अंदर लिखेंगे तो उसका साइज एज कंपेयर टू H1 थोड़ा सा कम हो जाएगा, एंड H3 में लिखेंगे तो H2 से साइज कम हो जाएगा, एंड सिमिलरली टिल H6। तो द मोस्ट स्मॉलेस्ट साइज इफ यू वांट टू प्रेजेंट एज एन हेडिंग यू नीड टू राइट इनसाइड H6, and the most capital size, the most highest size that you want to mention in H1, center। अगर आप टेक्स्ट को सेंटर करना चाह रहे हैं तो आप सेंटर का टेक्स्ट यूज करेंगे, और अगर आप फॉन्ट की स्पेसिफिक नेम चाह रहे हैं, सपोज टाइम्स न्यू रोमन इज वन फॉन्ट फैमिली, सपोज वर्डाना इन इज अनदर फॉन्ट फैमिली, सब डिफरेंट फॉन्ट्स अगर यूज करना चाह रहे हैं तो आप फॉन्ट्स के टैग के अंदर मेंशन करेंगे। फॉन्ट का सब एट्रीब्यूट है फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस में आप मेंशन करेंगे कि आपका कौन सा पर्टिकुलर एट्रीब्यूट टाइप है। साइज में आप मेंशन करेंगे कि आपके फॉन्ट का साइज क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 7, एंड कलर के अंदर आप फॉन्ट का कलर मेंशन कर देंगे। कलर रेड करना चाह रहे हैं, ग्रीन करना चाह रहे हैं, ब्लू लिखना चाह रहे हैं। इफ यू डू कंसिडर द एग्जाम्पल, फॉन्ट का टेक्स्ट स्टार्ट हुआ, उसके अंदर आपने मेंशन किया फॉन्ट फेस, ये इसी फॉन्ट का पार्ट होगा। फॉन्ट फेस इक्वल्स टू आपने फॉन्ट की नेम बता दिया, कॉमिक सैन MS, लाइक टाइम्स न्यू रोमन की तरह ये भी एक फॉन्ट साइज है, स्टाइल है। देन स्पेस के बाद आपने इसका साइज मेंशन किया डायरेक्ट, एंड देन कलर के इक्वल कलर का नेम मेंशन किया, कलर में हैश कोड भी मेंशन कर सकते हैं आप। एंड देन आपने फॉन्ट के बाद लिखा वेलकम। सो बेसिकली वेलकम इज दैट पर्टिकुलर वर्ड दैट विल अपीयर इन दिस फॉन्ट स्टाइल विद दिस साइज एंड इन दिस कलर, और आपने उसके बाद एंडिंग टैग ऑफ फॉन्ट मेंशन किया। सो प्री का टैग, अगर आप प्री का टैग यूज नहीं करेंगे, सो आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो सिमिलरली वन गो में लिखी आ जाएगी। बट अगर आपने जिस तरह इंफॉर्मेशन लिखी है, सपोज आपने डिफरेंट लाइंस में लिखी है, स्पेसिंग देके लिखी है, तो जैसे आपने इंफॉर्मेशन लिखी है वो वैसे ही प्रेजेंट होगी। स्पेस एंड लाइन ब्रेक्स आर सपोर्टेड इन प्री। टेक्स्ट जो है वो मोनोस्पेस कर सकते हैं फॉर्मेट में HTML के अंदर, और टेक्स्ट जो है वो सेम फॉर्मेट में आप शो कर सकते हैं जैसा कि आपने एडिटर में लिखा। अब ये आप देखें, ये एडिटर था, पहला जो टॉप पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, आपने एडिटर में ऐसे लिखा, लेकिन क्योंकि प्री का टैग यूज नहीं हुआ तो आउटपुट आपके पास ऐसे आ रही है स्ट्रेट वन लाइन में हेलो वर्ल्ड, जबकि यहां पे आपने एडिटर में प्री का टैग यूज किया। सो प्री का टैग यूज करने के फायदा क्या हुआ कि आपका हेलो का वर्ड एक सेपरेट लाइन में प्रिंट होगा, और वर्ड का जो वर्ल्ड का वर्ड है वो सेपरेट लाइन में प्रेजेंट होगा। सो अगर आप चाह रहे हैं कि आपने जैसे एडिटर में इंफॉर्मेशन लिखी वैसे ही प्रेजेंट हो, तो आपको प्री का स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग दिखेगा, और अगर आप नहीं लिखेंगे तो विदाउट दैट वो वन गो में इंफॉर्मेशन को लिख देगा। स्ट्राइक इज अनदर टैग दैट इज यूज्ड। स्ट्राइक का टैग बेसिकली
आपके मॉडर्न ब्राउजर से डिलीट कर दिया गया, और स्ट्राइक का टैग आपका जो है बेसिकली वो वर्ड के ऊपर ऐसे एक लाइन के लिए आ जाएगा स्ट्राइक के तौर पे। फिर आपके पास सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट के टैग हैं। स्ट्राइक के टैग को हम देख लेते हैं यहाँ पे, और सबस्क्रिप्ट को, सुपरस्क्रिप्ट को एग्जाम्पल में। HTML का स्टार्टिंग टैग आया, हेड आया, टाइटल में हमने HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मेंशन की, हेड टैग को एंड किया, बॉडी टैग को हमने स्टार्ट किया। अब स्ट्राइक में हमने लिख दिया हेलो वर्ड, स्ट्राइक एंड हुआ। अब हेडिंग स्टार्ट हुई, अब हमने सबस्क्रिप्ट को लिखा 2 और उसके बाद हमने सुपरस्क्रिप्ट को लिखा 5 और बॉडी टैग को एंड कर दिया। सो इफ यू डू कंसीडर, सो हमारे पास स्ट्राइक की वजह से हेलो वर्ड जो है वो क्रॉस में आ गया, और सबस्क्रिप्ट मीन्स आप उसको नीचे लिखना चाह रहे हैं, लाइक H2O केमिकल फार्मूला फॉर द वाटर, तो 2 आप नीचे लिखना चाह रहे थे तो सबस्क्रिप्ट के 2 पे आपने लिखा। सो इफ यू डू कंसीडर 2, और आप चाह रहे हैं O से पहले आ जाए और H के दरमियान आ जाए, तो H और O के दरमियान आपने लिखा। और यहाँ पे आपने इसको X की पावर बनाना है, सो आपने सुपरस्क्रिप्ट यूज किया, सो X की पावर बना दी आपने सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट को यूज करते हुए। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं आपके HTML के अंदर जो आप यूज कर सकते हैं। नॉन ब्रेकिंग स्पेस, अगर आप स्पेस जो है वो नहीं चाह रहे, आप कंटिन्यूसली चाह रहे हैं, सो आप यूज करेंगे NNBSP। अगर आप कॉपीराइट इंफॉर्मेशन लिखना चाह रहे हैं तो एंड कॉपी सेमीकोलन आप ये सिंबल डाल देंगे कॉपीराइट का। सो वेबसाइट्स पे, वेब एप्लीकेशंस पे कॉपीराइट की इंफॉर्मेशन के लिए कॉपीराइट की कैरेक्टर्स यूज करेंगे आप। रजिस्ट्रेशन का ट्रेडमार्क यूज करना है आपने, तो आप एंड रजिस्ट्रेशन सेमीकोलन आर ट्रेडमार्क का सिंबल आपके पास प्रेजेंट हो जाएगा। अगर आपने किसी फ्रैक्शन को 1/4 में लिखना है तो एंड फ्रैक्शन आप जो भी 1/4 लिखना चाह रहे हैं तो वो उसको आप कॉलन डाल के 1/4 आप प्रिंट कर लेंगे, 1/4 को प्रेजेंट कर लेंगे। आप किसी भी लिखना चाह रहे हैं, आप किसी भी न्यूमेरिक डिजिट का वैल्यू का 1/4 लेना चाह रहे हैं। अगर आपने ग्रेटर देन का सिंबल मेंशन करना है, एंड ग्रेटर देन कॉलन, तो ग्रेटर देन का सिंबल आप इसमें मेंशन करेंगे। और अगर लेस देन का सिंबल यूज करना है तो एंड LT लेस देन कॉलन लेस देन का सिंबल यूज करेंगे। और अगर आप ट्रेडमार्क का सिंबल यूज करना चाह रहे हैं तो एंड ट्रेड कॉलन ट्रेडमार्क। तो दीज आर दी स्पेशल कैरेक्टर्स फॉर नॉन ब्रेकिंग स्पेस, कॉपीराइट, रजिस्ट्रेशन मार्क, फ्रैक्शन 1/4 एंड ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन एंड ट्रेडमार्क साइन, और इनको आप इस अंदाज से प्रेजेंट करेंगे। So if you consider an example of it, HTML special characters, in body tag a heading is given and the heading is hello, and then again the one is mentioned, that is non-breaking space, and then world is mentioned, and then again copy is mentioned, that is copyright information of ComSci Institute of Information Technology Virtual Campus, and then line break is considered, and after that 2, 5, 25 is mentioned in order to present in a fractional form. So 3 tags are used over here. So if you do consider, hello world is written, and then copyright information is presented, and then the fraction is presented in 2/5 form. So here we have utilized 3 tags of special characters. Lists in HTML. You can present 2 major categories of lists in HTML: an unordered list and ordered list. In unordered list, the starting tag is UL and ending tag is /UL, and list item is presented with li. So you can mention the list item with fill round or square normally, either it is ordered list or unordered list. So in case of unordered list you mention the bullets, in case of ordered list you mention the types 1, 2, 3 और ABC. For the ordered list जो starting tag है वो OL है और ending tag /OL है। और लिस्ट आइटम आप कैसे करेंगे, टाइप, और आपने जो भी टाइप मेंशन करनी है
आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में एक अल्फ़ाबेट को, एक वर्ड को डालेंगे आप, और कॉमा करके आप नेक्स्ट लिखते जाएंगे। एंड इट स्टार्ट्स अलर्ट्स द नंबरिंग सीक्वेंस, और नंबरिंग सीक्वेंस आपका ये बता रही होगी ऑर्डर्ड लिस्ट, और वैल्यू जो चेंज हो रही होगी, ठीक है, ये सीक्वेंस इन द मिडल ऑफ ऑर्डर लिस्ट होना चाहिए। सो चेंजेस द नंबर ऑफ सीक्वेंस इन द मिडल ऑफ एन ऑर्डर्ड लिस्ट। सो आपकी एक मिडल में जो ऑर्डर लिस्ट है वो उसका सीक्वेंस उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर रहा होगा, जो वैल्यू आपने दी होगी उस वैल्यू के अगेंस्ट आप वो लिस्ट को इंक्रीज कर रहा होगा। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्डर्ड लिस्ट। नाउ यू डू कंसीडर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डॉक्यूमेंट टाइप दिया HTML, इट शोज ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद HTML मेंशन किया हमने, हेडिंग मेंशन नहीं की, बाय डिफॉल्ट हेड आ जाएगा। बॉडी का टैग स्टार्टिंग एंडिंग टाइम मेंशन किया। हेडिंग 2 का साइज दिया, अनऑर्डर्ड लिस्ट विद डिफॉल्ट बुलेट्स आएंगी। सो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट मेंशन की और उसके अंदर मेंशन किया हमने लिस्ट को कॉफी, टी एंड मिल्क। सो 3 ऑर्डर हमने इसके अंदर मेंशन किए लिस्ट इंडेक्स का। और इफ यू डू कंसीडर, तो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था कि इसके अंदर बुलेट्स किस किस्म की, क्योंकि वो डिफॉल्ट बुलेट्स जो है वो डॉटेड फॉर्म में आती है HTML में। सो इसने डिस्प्ले कैसे कर दिया वेब ब्राउजर के अंदर, बुलेट सच कॉफी एंड देन नेक्स्ट बुलेट एंड विद टी एंड देन नेक्स्ट बुलेट। तो बाय डिफॉल्ट ये बुलेट्स हैं। अगर आप बुलेट्स को चेंज करना चाहते हैं तो हमने जैसे पीछे स्लाइड में देखा कि आप मेंशन कर सकते हैं कि आप उसको राउंड चाह रहे हैं या आप उसको स्क्वायर चाह रहे हैं और उसका साइज कितना चाहिए, तो आप बुलेट्स की साइज को, शेप्स को चेंज, मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अभी एक ऑर्डर लिस्ट को देख लें आप। डॉक्यूमेंट टाइप HTML5 का डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर HTML का स्टार्टिंग टैग, HTML का एंडिंग टैग, बॉडी का स्टार्टिंग टैग है, बॉडी का एंडिंग टैग। हेड टैग नहीं है तो टाइटल टैग नहीं होगा। हेडिंग 2 आपने मेंशन की, ऑर्डर लिस्ट आपके पास आ रही है। ऑर्डर लिस्ट का टैग आपने स्टार्टिंग किया OL मेंशन किया, ऑर्डर लिस्ट का एंडिंग टैग /OL मेंशन किया। उसके बाद लिस्ट इंडेक्स कर दिया आपने, अगेन कॉफी, टी एंड मिल्क। तो आपने इसके अंदर भी लिस्ट इंडेक्स की टाइप मेंशन नहीं की, तो वो डिफॉल्ट टाइप को उठाएगा, दैट इज 1 2 3। सो 1.coffee, 2.tea, 3.milk। सो डिफॉल्ट जो ऑर्डर लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली उसने इसको मेंशन कर दिया। नाउ द डेफिनेशन लिस्ट। लिस्ट जो है HTML के अंदर, उसके अंदर ये टैग्स यूज होंगे अगर आपने एक लिस्ट को डिस्प्ले करना है। सो स्टार्टिंग टैग DL, डेफिनेशन लिस्ट। एंडिंग टैग /TL, डेफिनेशन लिस्ट इन रही है आपके पास। डेफिनेशन टर्म, आप कोई भी टर्म डिफाइन कर रहे हैं पर्टिकुलरली तो आपको DT यूज करना पड़ेगा, डेफिनेशन टर्म। एंड /डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, सो आपको डेफिनेशन को डिस्क्राइब करने के लिए DD यूज करना पड़ेगा। सो स्टार्टिंग टैग फॉर डेफिनेशन इज DL, एंडिंग टैग फॉर डेफिनेशन इज /with DL, ये अगेन डेफिनेशन का है तो एंडिंग की वजह से स्लैश लगा। एंड डेफिनेशन टर्म DT लग गया और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के लिए DT। तो कॉमनली अगर आप देखें तो डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन टी एब्रीविएशन ही है वर्ड्स का, DT एंड DT। जबकि स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के लिए DL यूज हो रहा है, एब्रीविएशन नहीं बन रहा L से। और इसके अंदर जो है स्टार्ट और एंड का डिफरेंस सिर्फ / का है, जो एज यूजुअल कॉमनली HTML टैग्स के अंदर मेंशन होता है। सो डिफरेंस बिटवीन HTML 4.01 एंड HTML 5.0 क्या है आपके पास? In HTML 4.01, the DL tag defines a definition list. So 4.01 में जब आप HTML को यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट टाइप 4.1 मेंशन करेंगे, अगर आप DL लिखेंगे तो HTML उसको डेफिनेशन लिस्ट कंसीडर करेगा। और HTML 5 में, वर्जन 5 में अगर आप DL लिखेंगे तो DL का डिफाइन जो टैग है वो एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट उसको अंडरस्टैंड करेगा। सो वन इज डेफिनेशन लिस्ट एंड द अदर इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। दीज आर टू डिफरेंट लिस्ट। सो डेफिनेशन लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट सेपरेट कॉन्सेप्ट हैं, जबकि टैग का स्टाइल सेम है, लेकिन डॉक्यूमेंट टाइप की वजह से उसका मीनिंग 4.01 में डेफिनेशन लिस्ट बनेगा और डॉक्यूमेंट टाइप की वजह से उसका कॉन्सेप्ट HTML 5 में DL बनेगा। सो ये DL का जो कंटेंट है ये सेम है, लेकिन डॉक्यूमेंट टाइप की वजह से डिफरेंस होगा, इसका आपने ध्यान रखना है।
नाउ सी एन एग्जांपल, डेफिनेशन लिस्ट की एग्जांपल हो रही है अभी. सो डॉक्यूमेंट टाइप HTML, HTML बॉडी DL, सब उसने लिखा. DT, अब DT आप देखें कॉफी मेंशन की उसने, एंड DT डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन ब्लैक हॉट ड्रिंक. सो देन डेफिनेशन की मिल्क मेंशन किया DT के टैग में, एंड DD डिस्क्रिप्शन उसकी मेंशन होगी. एंड देन इनके हर एक का स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग आपके पास आ रहा है. सो DT का स्टार्टिंग टैग कॉफी एंड एंडिंग टैग, देन DD स्टार्टिंग टैग ब्लैक हॉट ड्रिंक उसकी डिस्क्रिप्शन एंड एंडिंग टैग, देन DT मिल्क एंड उसके एंडिंग टैग, और दिस उसकी डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग टैग DT उसकी डिस्क्रिप्शन वाइल्ड कोल्ड ड्रिंक उसका एंडिंग टैग. और ये डेफिनेशन लिस्ट थी, दैट्स वाई इसके अंदर आपने डेफिनेशन लिस्ट का स्टार्टिंग टैग और डेफिनेशन लिस्ट का एंडिंग टैग मेंशन किया, और ये अपने बॉडी के अंदर मेंशन करना है. और इसकी आउटपुट आपके पास क्या आई, कॉफी, ब्लैक हॉट ड्रिंक, ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, एंड मिल्क, और ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई वाइल्ड कोल्ड ड्रिंक. सो ये डेफिनेशन लिस्ट के एग्जांपल है आपके पास. नेस्टेड डेफिनेशन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं एक इसके अंदर, नेस्टेड डेफिनेशन. सो मल्टीपल लिस्ट को आप नेस्ट भी कर सकते हैं. इफ यू डू कंसीडर अवर हियर डॉक्यूमेंट टाइप HTML, HTML का स्टार्ट टैग यूज हुआ. अब इसमें तमाम टैग्स यूज हो रहे हैं. सो अब कंप्लीटली हम इसको ओवरव्यू कर रहे हैं तमाम टैग्स को. सो HTML बॉडी H2 एंड डेफिनेशन लिस्ट, ये आपने हेडिंग दी जो आपकी बॉडी के टैग के अंदर मौजूद है. देन आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का स्टार्टिंग टैग, उसके बाद आपने लिस्ट इंडेक्स किया कॉफी, एंड देन आपकी एक और आपने लिस्ट मेंशन की टी के अंदर आपने मजीद नेस्ट कर दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट को. सो आपके पास पहले वाली अनऑर्डर्ड अलग थी और ये मजीद लिस्ट दोबारा आपने नेस्ट कर दिया इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट को. तो टी की सब कैटेगरीज आपने बताई, ब्लैक टी एंड ग्रीन टी. सो दोनों के लिए अलग से आपका लिस्ट इंडेक्स की स्टार्टिंग टैग और ग्रीन टी के लिए भी एंडिंग टैग ऑफ लिस्ट इंडेक्स मेंशन किए. उसके बाद आपने दोबारा आपने लिस्ट इंडेक्स के एक थर्ड कैटेगरी को दैट इज मिल्क, उसके स्टार्टिंग टैग और उसके एंडिंग टैग मेंशन किए, और अगेन अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज किया. एंड देन ये बॉडी के अंदर होगा और HTML टैग का एंड हुआ. सो आपके पास जो फर्स्ट वन है वो आप देखिए यहाँ राइट साइड पे आउटपुट मौजूद है. सो H2 आपके पास प्रेजेंट हो रहा है एज अ नेस्टेड लिस्ट, जबकि आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो पहला आपके पास मौजूद हो रहा है वो आपके पास आ रहा है कॉफी, और जो आपके पास दूसरा आपके पास यहाँ पे आ रहा है वो आपके पास आ रहा है टी, और टी के अंदर आपकी दो कैटेगरीज आ रही हैं यहाँ पे, ब्लैक टी, और आपके पास एक और कैटेगरी आ रही है ग्रीन टी, और आपके पास जो है एक ऑप्शन आ रही है मिल्क की. से अलग से तीन कैटेगरीज आपके पास यहाँ पे आ रही है, अलग से तीनों आप देख सकते हैं यहाँ पे. सो ये नेस्टेड लिस्ट है, मींस आपकी ये मेन लिस्ट थी कॉफी टी एंड मिल्क की, और टी के अंदर आपने ये ब्लैक टी एंड ग्रीन टी की एक और सब लिस्ट बना दी, ये आपकी नेस्टेड लिस्ट बन गई इसके अंदर मजीद. सो आप देखें कि आपने प्रीवियस स्लाइड में अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पे सिंगल लिस्ट थी डेफिनेशन लिस्ट, जबकि करंट स्लाइड के अंदर हमारे पास नेस्टेड लिस्ट थी, तो ये विद इन द लिस्ट आ गई. सो हमने एक लिस्ट को मजीद नेस्ट करना भी देख लिया. नेस्टेड लिस्ट को हम मजीद मल्टीपल लिस्ट के साथ भी लिंक कर सकते हैं. सो इफ यू डू कंसीडर अवर हेयर इन दिस सब लिस्ट के साथ हम इसको लिंक कर रहे हैं अभी. सो नेस्टेड लिंक, और अगेन उसकी तीनों कैटेगरीज और सब लिस्ट को लिंक कर दिया. सो व्हाट वी हैव स्टडीड इन टुडेज लेक्चर, in today's lecture first of all we have studied what is HTML. HTML is basically hypertext markup language, and HTML is basically started with version 1,
एंड देन HTML के हमने देखा कि एक इदारा है W3 कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसको हम W3CB कहते हैं। सो W3 कंसोर्टियम ने HTML को ओरिजिनेट किया और इसको हेड किया। फिर इसका एक वर्जन आया 3.02 90s की स्टार्ट में, और उसमें बड़े लिमिटेड किस्म की ऑप्शंस मौजूद थी। देन इसका एक नया वर्जन आया मिड 90s में, और जब इसका सेकेंड वर्जन आया तो डिफरेंट वेब ब्राउजर्स ने अपने अपने वेब ब्राउजर्स के अंदर इसके टैग्स को एम्बेड कर लिया, और फिर कैनोली ने अपने टीम्स के साथ, मेंबर्स के साथ जो है, डैन कैनोली ने जो है फ्रेंड्स के साथ वो सारे टैग्स को कलेक्ट किया और उनकी एक जो है ना ड्राफ्टेड वर्जन बनाया। और देन हमारा एक लेटर वर्जन इंप्रूव हुआ HTML का, एंड इस तरह इंप्रूवमेंट करते करते हमारे पास जो रिसेंट वर्जन है वो HTML5 है। फिर हमने देखा कि HTML के डिफरेंट जो पेजेस हैं HTML के, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारे पास एक HTML पेज जो है वो एक दूसरे वेब पेज के साथ वर्ल्ड वाइड वेब में नॉन लीनियर लिंकिंग होती है। सो एक HTML पेज दूसरे वेब पेज के साथ लिंक होगा। सो क्या स्ट्रक्चर होगा एक पेज का, उस पेज में हेडर कहाँ पे होगा, उस पेज की लिंकिंग कैसे होगी, उस पेज के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं वो आएंगे। और फिर हमने देखा कि HTML के अंदर हमारे डिफरेंट किस्म के टैग्स यूज हो रहे हैं, और वो टैग्स उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। वहां पे हमने ये देखा कि जो भी चीज हम बॉडी के टैग में मेंशन कर रहे होते हैं, वो चीज बॉडी के टैग में जो आ रही होती है वो ही यूजर को डिस्प्ले होगी। जो हेड के टैग में हम मेंशन कर रहे होते हैं वो यूजर को डिस्प्ले नहीं हो रही होती। एंड देन हमने ये बात देखी इसके अंदर कि हमारे पास कौन कौन से टैग्स हैं HTML के, बॉडी के टैग्स के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। हम एक टैग को मेंशन करेंगे, एक टैग का नाम होगा, एक टैग का पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होगा, स्पेसिफिक पर्पस होगा एक डॉक्यूमेंट के लिए। और इसके अलावा हमने देखा कि हम टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं HTML पे। डिफरेंट तरह की हमारे पास फॉर्मेटिंग है, और हम बॉडी में अगर टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। अगर हम फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ के बगैर अगर हम लोग एक टेक्स्ट को लिख रहे हैं तो वो जिस तरह भी हमने लिखा होगा वो सीधा उसी तरह आउटपुट पे डिस्प्ले में आ जाएगा, विदाउट एनी स्पेसिंग, पैराग्राफिंग एंड लाइन ब्रेक। तो उसके लिए हमने देखा कि सपोज हम पैराग्राफ यूज कर रहे हैं तो हम एक टेक्सचुअल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं। पैराग्राफ के लिए P का टैग यूज होता है, स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग को कंसिडर करते हुए। और अगर हम एक पैराग्राफ के बाद लाइन ब्रेक करना चाह रहे हैं, हम BR का टैग यूज करेंगे। BR एक सिंगुलर टैग है आपके पास। और फिर इस तरह हमने और भी टैग्स देखे। फॉर एग्जाम्पल हमने बोल्ड का टैग देखा, B का टैग है बोल्ड करने के लिए होता है टेक्स्ट को। I का टैग देखा हमने, इटैलिक करने के लिए यूज हो रहा है आपके I का टैग। और अगर आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो आप U का टैग यूज कर सकते हैं अंडरलाइन करने के लिए। और एक पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर आप डालना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू डिस्प्ले अ कंप्लीट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन योर वेब ब्राउजर टू बी डिस्प्लेड टू द यूजर, तो आप HR का टैग यूज कर रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ हमने देखा कि हम सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट भी कर रहे हैं और स्ट्राइक भी कर रहे हैं। सो सबस्क्रिप्ट में ये है कि आप अगर किसी वर्ड को एज अ बेस आप लिखना चाह रहे हैं तो आप सबस्क्रिप्ट को यूज करेंगे। लाइक हमने H2O की एग्जांपल देखी थी, वेयर 2 को हमने बेस कर दिया था यूजिंग सबस्क्रिप्ट टैग। और फिर अगर आप किसी को सुपरस्क्रिप्ट करना चाह रहे हैं, एज अ पावर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप सुपरस्क्रिप्ट यूज करेंगे, जैसे हमने x की पावर 5 बना के देखा था। और इसके साथ साथ हमने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के अंदर कलर्स को भी देखा कि हम एक बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं BG कलर के जरिए, और हम टेक्स्ट को कलर देना चाह रहे हैं तो वह सेपरेट कलर भी हो सकता है। और उसको आगे प्रोसीड करते हुए हमने इमेज को भी देखा कि हमें इमेज का टैग भी यूज कर सकते हैं इमेज के जरिए। और इमेज के टैग को यूज करने के लिए हमें हमेशा इमेज की टाइप को क्लियरली मेंशन करना होगा, और इमेज की साथ साथ हम इमेज के अंदर जो है इमेज का साइज भी मेंशन कर सकते हैं। और एक इमेज के ऊपर हम किसी डिफरेंट टेक्स्ट को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उस कलर को भी यूज कर सकते हैं इमेज के साथ। सो फिर हमने उसके एग्जांपल्स को देखा, डिफरेंट कलर्स थे हमारे पास और हमने अप्लाई किया। कलर्स के फिर हैश कोड होते हैं। सो हैश कोड आप गूगल कर लेंगे तो आपको आप कलर की जगह हैश कोड लिखेंगे और हैश कोड के अगेंस्ट वो काम करेगा। उसके अलावा भी हमने टेक्स्ट के ऊपर देखा कि टेक्स्ट के अंदर एक फॉन्ट का टैग था,
उसके अंदर मजीद सब एट्रीब्यूट्स थे फ़ॉन्ट के टैग के। फ़ॉन्ट का फेस था, दैट इज फ़ॉन्ट स्टाइल आप मेंशन कर सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन है आपका, कैलबरी है। सब कौन से फ़ॉन्ट फेस यूज़ कर रहे हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ था, फ़ॉन्ट का साइज़ कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो आप देखेंगे। साइजेस आपके पास मेंशन है डिफरेंट, 1 to 7 आप साइज मेंशन कर रहे हैं फ़ॉन्ट का। और इसके अलावा आप फ़ॉन्ट को कहाँ रखना चाह रहे हैं, आपका जो फ़ॉन्ट है वो आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आप अपने टेक्स्ट की आपकी पोजीशन से पेज पे आप लेफ्ट करना चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट को, आप अपने टेक्स्ट को सेंटर करना चाह रहे हैं, आप उसको राइट करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, और टेक्स्ट को जो है उसकी लोकेशन जो है ये बता रही होगी आपकी अलाइन लेफ्ट एंड सेंटर से। और इसके साथ साथ हमने हेडिंग्स को देखा कि आपकी डिफरेंट हेडिंग साइजेस हैं। H1 से लेके H6 तक आपकी हेड साइज है। H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग साइज जो आप मेंशन कर रहे हैं लार्ज लेवल पे। H2 आपका स्मॉलेस्ट है एज कम्पेयर टू H1। देन H3 उससे और स्मॉलेस्ट है, H4 और स्मॉलेस्ट है, एंड सो ऑन H6। सो H6 आपकी स्मॉलेस्ट हेडिंग है। तो जब भी आप H6 में लिखेंगे तो स्मॉलेस्ट साइज में आएगा, और H1 में लिखेंगे आप लार्जेस्ट हेडिंग में आपके पास डिस्प्ले होगा। और इसके बाद हम लोगों ने एक जो टैग देखा वो हमने पैराग्राफ के साथ भी देखा था। BR लाइन ब्रेक के लिए यूज हो रहा है। जब ये BR लिखेंगे तो लाइन ब्रेक आ जाएगी आपके पास। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देखे कॉपीराइट इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, ट्रेडमार्क इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए। इसके साथ हमने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को प्रेजेंट करने के लिए हमने देखा। सो डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर्स हमने देखे कि अगर हमने प्रेजेंट करना हो फ्रैक्शन की फॉर्म में, अगर कोई इंफॉर्मेशन हमने प्रेजेंट करनी है तो उसको हमने स्पेशल कैरेक्टर्स में देखा। सो हमारे ये डिफरेंट टैग्स है। उसके बाद हमने जो है वो लिस्ट को देखा। तो उसने हमने लिस्ट को डेफिनेशन लिस्ट देखी, डिस्क्रिप्शन लिस्ट देखी, उनके टैग्स को देखा, और हमने देखा कि DL की टैग के डिफरेंट मीनिंग्स से डिफरेंट 4.01 में जो है वो डेफिनेशन लिस्ट थी, एंड 5 में वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है हमारे पास सेपरेटली। और इसके साथ साथ हमने ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट को देखा, और हमने देखा कि हम लिस्ट को अनऑर्डर्ड बना सकते हैं, लिस्ट को ऑर्डर्ड बना सकते हैं। जब हम लिस्ट को ऑर्डर्ड बनाएंगे तो हमारी लिस्ट के साथ नंबरिंग मेंशन होती है। नॉर्मली 1 2 3 बाय डिफॉल्ट 1 2 3 होती है। सब नंबरिंग भी कर सकते हैं आप, अल्फाबेटिकल नंबरिंग भी कर सकते हैं ABC, और रोमन नंबरिंग भी कर सकते हैं आप। और अगर आप अनऑर्डर्ड बनाएंगे एक लिस्ट को तो आपके पास बुलेट्स फॉर्म में आ जाएगी, और आप जो भी बुलेट्स देना चाह रहे हैं उसको भी आप मजीद जो है आप ऑर्डर लिस्ट में उसकी टाइप बता सकते हैं कि वो फील्ड सर्कल हो, रेक्टेंगुलर हो, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं टैग के अंदर। और अनऑर्डर लिस्ट बाय डिफॉल्ट जो है वो बुलेट्स को लेके आ रही होती है। सो आप एक लिस्ट में मेंशन करेंगे कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और उसके अलावा आप जो जो मेंशन करना चाह रहे लिस्ट में उसको आप इंडेक्स कर देंगे। फिर इसके साथ साथ हमने जो है वो नेस्टेड लिस्ट को भी देखा, नेस्टेड लिस्ट को। तो नेस्टेड लिस्ट में हमने देखा कि एक लिस्ट जो है उसके अंदर सब लिस्ट भी हो सकती है। सो लिस्ट विद इन अ लिस्ट इज सेड टू बी नेस्टेड लिस्ट। सो ऑर्डर्ड लिस्ट को भी आप नेस्टेड कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी आप नेस्टेड कर सकते हैं। और उसके लिए हमने देखी एग्जाम्पल अलग से कि हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट ली, उसके अंदर हमने सपोज कॉफी को मेंशन किया, टी को मेंशन किया, और मिल्क को मेंशन किया। ये मेजर लिस्ट थी। अगर हमने एक नेस्ट करना है तो फिर हमने उसके अंदर टी की जो लिस्ट थी उसके अंदर सब लिस्ट को मजीद मेंशन किया कि ये ब्लैक टी है, ये हमारे पास ग्रीन टी है, तो ये हमने एक और नेस्टेड टी को बीच में इंटीग्रेट किया। सो लिस्ट विद इन अ लिस्ट हमारे पास मेंशन होगी कि ये विद इन अ लिस्ट हमारे पास मौजूद है। और इसके अलावा हमने जो एक चीज देखी थी वो हमने डॉक्यूमेंट टाइप को देखा था कि आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो आपको पेज में मेंशन करने से ये बताएंगे आप कि ये डॉक्यूमेंट किस कैटेगरी का है। ये डॉक्यूमेंट जो है ये HTML 3.2 का है, HTML 4.1 का है, HTML 4.2 का है, HTML 5 का है। और इसके साथ हमने ये बात देखी कि HTML की डॉक टाइप मेंशन करनी हो या HTML की टैग्स मेंशन करने हो। नॉर्मली HTML टैग्स, HTML डॉक टाइप जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। आप स्मॉल में लिखें, आप कैपिटल में लिखें, आप स्मॉल या कैपिटल को इंक्लूड करवा दे दोनों को, वो केस सेंसिटिव नहीं है। उसके लिए वो मीनिंग्स डिफाइन है कंपाइलर में, वो उसी के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करेगी।
और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि HTML के 4.2 वर्जन के अंदर स्टाइल शीट्स आ गई थी हमारे पास। स्टाइल शीट्स को हम HTML के बाद डिटेल में आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि स्टाइलिंग कैसे करनी है। सो ये हमारा बेसिक सा एक ओवरव्यू था कि HTML के बेसिक टैग्स क्या हैं, टैग्स के नाम क्या हैं, टैग्स का पर्पस क्या है, टैग्स को यूज कैसे करते हैं, टैग्स के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और टैग्स को हम फॉर्मेट कैसे करते हैं, टैग्स की फॉर्मेटिंग के कौन कौन से टैग्स हैं और लिस्ट कौन कौन सी टाइप्स में और नेस्टेड लिस्ट कौन सी हैं। ये हमारे आज के लेक्चर की समरी थी। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।